Good morning, dear students. In the previous class, we have discussed about some types of connective tissues. Connective tissues are those tissues which are connecting different organs or different parts of the body. Connective tissue includes the first type of tissue that we had studied was a fluid connective tissue, जिसमें हम include करते हैं blood को. Another type of connective tissue that we had discussed was the bones, right? तो bones जो होते हैं उन्हें हम connective tissue में इसीलिए include करते हैं because bones will be connecting with the another bone also, as well as a bone will be connecting with the muscles. The bones will be connecting with the muscles by the help of tendons, whereas two bones are connected to each other by the help of the ligaments. So we have studied that what are tendons and what are ligaments as separate connective tissues also. Bones में हमने बात की थी that there will be presence of the bone marrow inside certain bones of our body. ये bone marrow दो तरह का होता है, एक होता है red bone marrow and the another one is the yellow bone marrow. Yellow bone marrow has the deposition of the fats, whereas red bone marrow is the site for the formation of the new blood cells. हमने bones के बारे में बात की थी that the bones will be having the bone cells जिन्हें कहा जाता है osteocytes. Connective tissue के सारे ही tissues जो हैं, सारे ही cells जो हैं, वो बहुत ही loosely arranged होते हैं और उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी ज्यादा होती है जिसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है. ये जो मैट्रिक्स है सेल्स के बीच में दैट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, राइट? सो हियर सम ऑफ द मैट्रिक्स विल बी फ्लूइड, सम ऑफ द मैट्रिक्स विल बी डेंस, सम ऑफ द मैट्रिक्स विल बी वेरी रिजिड. वेरी रिजिड मैट्रिक्स इन्वॉल्व्स द मैट्रिक्स ऑफ द बोन्स जिनमें कैल्शियम और फास्फोरस डिपॉजिटेड होता है और जिसकी वजह से मैट्रिक्स जो है वो काफी डेंस हो जाती है. Now we are moving on to the next type of connective tissue and that is very similar to that of bones with some differences जिसे हम कहते हैं cartilage. तो cartilage जो है, this cartilage is also having the presence of cartilage cells. And cartilage cells are known as chondrocytes. The cartilage cells are known as chondrocytes. जैसे कि bone cells को हम कहते हैं osteocyte, cartilage cells को हम कहते हैं chondrocytes. These cells are loosely arranged. These cells are loosely arranged and have larger intercellular spaces between them. Larger intercellular spaces between them मतलब सेल्स के बीच में बहुत सी जगह होती है. एपिथेलियम में हमने क्या पढ़ा था कि सारे ही सेल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, जबकि यहाँ पे सेल्स टाइटली पैक्ड नहीं है. यहाँ पे सेल्स के बीच में काफी जगह होती है और इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर मोर. अब इंटरसेल्युलर स्पेसेस का ज्यादा होना मींस ये स्पेसेस में क्या प्रेजेंट होगा? मैट्रिक्स. एंड मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर. इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो किससे बनती है? प्रोटीन से बनती है और शुगर से बनी हुई मैट्रिक्स इनमें प्रेजेंट होती है. तो ये प्रोटीन्स और ये शुगर सिंथेसाइज कौन करता है, आता कहां से? सो दीस प्रोटीन्स एंड शुगर्स आर रिलीज्ड बाय द कार्टिलेज सेल्स इटसेल्फ. ये जो कार्टिलेज सेल्स हैं वही रिलीज करते हैं ये प्रोटीन्स और शुगर की बनी हुई मैट्रिक्स को, और इस मैट्रिक्स को कहा जाता है chondroitin matrix. This is known as chondroitin matrix या chondroitin sulfate करके सब्सटेंस होता है इन मैट्रिक्स में.
कार्टिलेजेस प्रेजेंट कहां पे होती है? तो कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट एज द कवरिंग ऑफ द एंड्स ऑफ द बोन. They are present at the end coverings of the bone. बोन के जो एंड जो होते हैं वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है एंड इट स्मूथेन्स द जॉइंट्स. क्योंकि दो बोन्स जहां पे इंटरेक्ट करते हैं वहां पे क्या होगा कि अगर दो बोन्स ही डायरेक्टली प्रेजेंट है, बीच में कार्टिलेज नहीं है, तो ये बोन्स जो है दे आर गोइंग टू रब अगेंस्ट ईच अदर. When they rub against each other, there is going to be frictional force acting between the bones, due to which bones जो है वो जल्दी से ही डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे. ये कार्टिलेज जो है वो बोन के एंड्स को कवर कर देता है और उसे स्मूथ कर देता है, so that even if they rub against each other, it is not going to cause a problem till cartilage is present, right? तो कई हमारे बॉडी के बोन्स जो है वो एक्सेसिवली यूज होते हैं, जैसे कि नी. और आपने देखा होगा कि नी जॉइंट्स पे पेन बहुत ही कॉमन है. तो ये क्यों होता है? बिकॉज द कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन देम इज स्लोली एंड स्लोली गेटिंग डैमेज, राइट? बिकॉज कॉन्स्टेंटली व्हेन यू वॉक, right, they are rubbing against each other, due to which such type of problems can occur. पर कार्टिलेज जो है वो बोन के एंड्स को क्या कर देते हैं? स्मूथ कर देते हैं and therefore makes a flexible movement at the joints. There are different types of cartilages. They are also present in the ear pinna, in the larynx, राइट? ईयर पिन्ना है, राइट, जो हमारा ईयर का आउटर मोस्ट कवरिंग ये जो रीजन है वहां पे प्रेजेंट होते हैं. लेरिंग्स जो हमारा साउंड बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है, वो भी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है. इसके अलावा एट द टिप ऑफ नोज बिटवीन द वर्टिब्रे जो है वो हमारा बैकबोन है. तो बैकबोन के जो बोन्स हैं, राइट, 32 ऐसे वर्टिब्रे अरेंज हैं, तो बोन्स के बीच में भी कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं. तो कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट एट सेवरल प्लेसेस. और कार्टिलेज और बोन्स में डिफरेंस ये होता है कि कार्टिलेज की मैट्रिक्स इतनी रिजिड नहीं होती, इट इज फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स. हावेवर उसकी भी स्ट्रेंथ ज्यादा ही होती है, पर वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है. आप कार्टिलेज को फोल्ड कर सकते हो बट यू कैन नॉट फोल्ड अ बोन. ओके, सो फ्लेक्सिबिलिटी में देखा जाए तो कार्टिलेज हैज अ फ्लेक्सिबिलिटी more compared to that of the bones. Okay, now that was the cartilage. Now we talk about one more connective tissue, which is the areolar connective tissue. अब हम areolar connective tissue के बारे में बात करते हैं. तो जो areolar connective tissue है, this is present. Areolar connective tissue is present in, or you can say present beneath the skin. It is present as covering of muscles, मतलब muscles के surrounding connective tissue present है. Areolar connective tissue present surrounding the blood vessels and nerves. Blood vessels and nerves, they also in their surrounding have the areolar connective tissue. मतलब areolar connective tissue जो है वो हमारी स्किन के नीचे सबसे पूरा डिस्पर्स, मतलब पूरा स्कैटर्ड है beneath our skin. Areolar connective tissue में स्किन के नीचे तो ये डिस्पर्स है ही, पर ये करता क्या है? तो it is responsible for protecting the delicate organs of our body. So we can say that it is protective for internal organs. हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सब की कवरिंग, उन सब के ऐसा कह सकते हैं मसल्स और स्किन के बीच में पूरा ही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है. और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग, नर्व्स के सराउंडिंग या तो मसल
मसल्स के सराउंडिंग हर जगह पे प्रेजेंट है, मतलब ज्यादा ही ज्यादा स्कैटर्ड है ये टिश्यू पूरे बॉडी में। यहाँ पे इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट पार्ट्स, प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू अगर हम देखें स्ट्रक्चर में, सो आई एम मेकिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वेयर यू विल बी एबल टू सी large sized cell which is known as fibroblast. There is a large sized cell जिसमें से फाइबर्स भी बनते हैं, इन्हें कहा जाता है फाइब्रोब्लास्ट। ये उसका न्यूक्लियस है। There is presence of very thin branched other fibers also. There is presence of different types of cells, right? तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है उनमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं। ये जो बंडल में प्रेजेंट है इन्हें कहा जाता है कोलाजन फाइबर। दे आर नोन एज कोलाजन फाइबर। और ये जो थिन पतले से थ्रेड की तरह है इन्हें कहा जाता है इलास्टिन फाइबर। It is known as elastin fiber। जो सेल में से ये फाइबर बनते हैं, मतलब कोलाजन और इलास्टिन फाइबर जो है वो जिन सेल्स में से बनते हैं उन्हें कहा जाता है फाइब्रोब्लास्ट। इसके अलावा there are other cells like mast cells and some more cells like macrophages, राइट? मैक्रोफेज और मास्ट सेल्स। यहाँ पे मैक्रोफेज जो होते हैं वो फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, मतलब अगर हमारी स्किन से इन्वेड हो रहा है कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन तो उसे ट्रैप करना, उसे एनगल्फ करके उसे पूरा ही ब्रेक कर देना, ये काम होता है मैक्रोफेज सेल्स का। तो ये एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आप पूरी ये जो जगह देख सकते हो वो है मैट्रिक्स। ओके, दिस होल स्पेस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या है? दो चीजें हैं, फाइबर है और सेल्स हैं। फाइबर दो तरह के हैं, कोलाजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर। कोलाजन फाइबर काफी थिक और स्ट्रेंथ वाले होते हैं, जबकि इलास्टिन फाइबर फ्लेक्सिबल और लूज से होते हैं। और यहाँ पे अलग अलग तरह के सेल्स हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं, मास्ट सेल्स हैं, और ये सेल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी इन्वेडिंग बैक्टीरिया और एनी इन्वेडिंग फॉरेन पार्टिकल। बाहर से कुछ अगर एंटर हो रहा है तो उससे प्रोटेक्शन देने का काम ये सेल्स करते हैं। इसके अलावा वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस वन मोर टाइप ऑफ टिश्यू विच इज द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं फैट सेल्स जिन्हें कहा जाता है एडिपोसाइट, और ये हमारी बॉडी में फैट्स को स्टोर करते हैं इन ग्लोब्यूल्स। दे स्टोर द फैट्स इन ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स जो है वो राउंड वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेल है ये एडिपोसाइट और उसके अंदर है ये ग्लोब्यूल। न्यूक्लियस जो है वो साइड पे चला जाता है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल पूरी जगह जो है वो फैट से स्टोर हो गई है, तो यहाँ पे फैट डिपॉजिट हो जाता है, इसे कहा जाता है फैट ग्लोब्यूल। तो हमारे ऑर्गन्स जैसे कि स्किन के नीचे तो एडिपोज टिश्यू है ही, राइट? हमारे टमी एरिया में नीचे की तरफ स्किन के नीचे कौन सा टिश्यू होता है? एडिपोज टिश्यू। इसके अलावा हमारे आईबॉल्स के पीछे, किडनी के सराउंडिंग, हर जगह पे जो बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं दे आर कवर्ड बाय द एडिपोज टिश्यू। ये फैट्स जो है, ये फैट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? द फैट्स आर प्रेजेंट इन द राउंड वेसिकल्स जिसे कहा जाता है फैट ग्लोब्यूल। तो ये पूरा सेल जो है इसे हम कहेंगे फैट सेल, और फैट सेल के अंदर होता है फैट ग्लोब्यूल, और ये ग्लोब्यूल में फैट स्टोर है। दूसरी चीज ये कि फैट्स जो है वो हमारी बॉडी में एक इंसुलेशन का भी काम करते हैं। हमारी बॉडी में हमें ज्यादा ठंडी ना लगे, ज्यादा गर्मी ना लगे, टेम्परेचर का रेगुलेशन दैट कैन आल्सो बी डन बाय द फैट ग्लोब्यूल्स। कई ऑर्गेनिज्म में ये टिश्यू बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होता है, राइट?
जैसे कि डॉल्फिन्स होते हैं, वेल्स होते हैं, उनके ऊपर आपने देखा होगा बहुत ही थिक स्किन होता है उनका। तो स्किन के नीचे a uniform layer of adipose tissue is present that functions for their protection against variable temperature changes. Okay, तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया, हमने we have discussed about the other type of connective tissue like bones and cartilages. We have discussed about the alveolar and the adipose connective tissues. Next lecture we will start with the muscular tissue.